life skills like the mentors like you can provide them what are the necessary skills they need to possess so that they could become better professionals in the next 2 years. A little introduction about Nidhi. My name is Nidhi Mediratta. She is a certified soft skills trainer from NABET. NABET is National Accreditation Board for Teachers. Is it, ma'am? Is it the national For level trainers. accreditation board for the teachers for training? Yeah, it's great achievement, ma'am, and you have been certified by the NABET. And one thing I have seen from your bio, there is aura enhancing. That intrigued me a little bit. We have seen the personality development and all other kind of things, but the aura enhancement is such. I think there is the area where we also need to look into what is the kind of the aura one can build up and what aura is about. That is very interesting topic, and we welcome you. Well, welcome on board, and I leave this platform to you to take this forward for 1 hour. Thank you, ma'am. We welcome to address our students. Thank you so much for the warm welcome. And I'll also would like to answer what you are curious about, what aura is. If we have seen, whenever we enter, anyone enters into the room or any place, social gathering, professional or anywhere, you feel or everyone feels that there is some kind of magic in that person or the dullness in that person or what are the vibes coming in. That is the aura the person creates for the environment by his or her own behavior, nature, smile, attributes. So I work on all the small categories on which a person can create his or her aura so that wherever these students will go, they will find that they are into that place. Most of the times they feel out of the place, and that makes them backsided, like they cannot do it. Once they feel that they are for the place, they can do anything, I believe. Okay. Thank you. Most welcome. So I'll wait for another few minutes, let everyone join in, and then we can start. Are you going to the corporates also for confidence building, aura enhancement, and all other related area with the corporate training to the corporates? Yes, I have been associated with BCG as well, Boston Consulting Group. Mm-hmm. Okay, okay. BCG. Yep. Wherever they do have the clients, then you will be going to the client side, or maybe. For their employees. Yeah, For yeah. their employees. Correct, correct. But you have not mentioned your connection with the BCG. But a good connection or the bigger connection. It is a big name. I have mentioned in my resume, Okay, my okay, the okay. resume that I have shared Okay, BCG is the with Dr. Boston Rahul. Consulting Group is the one such consultancy which is in India for quite a long period, and they are a big name in the consultancy. And having association and working with BCG and its clients, Yeah. really a good achievement, man. Please, Maybe we it's have got not there I on think LinkedIn. It is there on my resumes. It is not mentioned on LinkedIn. okay, okay, okay. Thank you. Carry on, ma'am. Please, we have got Most welcome. adequate attendance now. Thank you so much. Good afternoon, everyone. So I can see Azhar, Drishti, Arin, Priyanshu, Ma'am, Vishesh, Rahul, Hardik. Would you, if I would request you all to switch on your videos? Everyone, switch on your videos. Would really like to see you all. Azhar, Aryan, thank you for switching on the videos. I know
Are you at your home or at colleges, wherever you are? Yeah, you are in Ma'am, I am at workplace now. workplace. Yeah. Hardik, great to see you. Yes, ma'am. Yes, कहाँ से I am अभी? in my home. मैम घर पे हूँ अभी. I घर am से. at my home. कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग घर पे बैठे हो, कैसे भी बैठे हो, वी आर नॉट हेयर टू जज यू किसी चीज पे. देखो यहाँ पे कोई मार्क्स नहीं मिल रहे हैं आपको, जैसे भी हो. इट्स अच्छा, अगर मैं अभी वीडियो ऑफ कर दूं तो क्या आपको सिर्फ मेरी आवाज सुननी अच्छी लगेगी? ये बताओ एवरीवन, राहुल, विजय, संतोष, क्या अच्छा लगेगा सिर्फ मैं बोलती रहूं 1 घंटा? ऐसे ही आप लोग जो वीडियोस ऑन करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है कि सबकी शक्ल देख के मैं बात कर रही हूँ. अदरवाइज मुझे क्या लगेगा, मैं वॉल से बात कर रही हूँ, मैं किससे बात कर रही हूँ? स्विच ऑन योर वीडियोस एवरीवन. चलो 1 मिनट लो, जल्दी से सब वीडियोस ऑन करो. थोड़ा सा अजीब लगता है अपने आप को देखना ना 1 मिनट के लिए. सबको अभी आदत नहीं होगी ना, या थोड़ी बहुत है, बोलते तो हैं. अब तो एवरीथिंग इज ऑन ऑनलाइन, काफी चीजें आफ्टर कोरोना. अगर यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, आप म्यूट कर सकते हो, और यू आर ट्राइंग टू से समथिंग. या थैंक यू. संतोष, Rahul, I would like to see you all. Can you hear me? Santosh, am I audible? Rahul, am I audible to everyone? Yes, ma'am. Reema? Hi Reema. Yes, ma'am. आप अपना वीडियो स्विच ऑन करना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, ग्रेट टू सी यू. सी सच स्माइलिंग फेसेस, कितना अच्छा लगता है सामने सामने देखना. अच्छा, किस किस को फिजिकल सेशंस पसंद है और किस किस को फिजिकल सेशंस पसंद है कि जाके वहाँ पे इंटरेक्शन करके वैसे बात हो और ज्यादा अच्छा लगता है? किसको पसंद है? रेज योर हैंड्स वर्चुअली. यहाँ पे रेज हैंड करने का ऑप्शन आता है. किसको पसंद है? संतोष, राहुल, लगता है ये सिर्फ लॉग इन करके नहीं है यहाँ पे. ओके, संतोष इज हियर. राहुल, आर यू हियर? राहुल, फ्रेंड्स हैं तो कॉल करके बता दो, आपका नाम लिया जा रहा है, देख लो. हेलो डेल्फी, आप अपना कैमरा स्विच ऑन करोगे? आई नो यू ऑल आर एट अ कंफर्टेबल प्लेस, घर पे हो, मे बी रेडी नहीं हो अभी एकदम से. नो इश्यूज, नो इश्यूज, कोई इशू नहीं है. हाँ, बस अगर शोर है पीछे से तो आप, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू म्यूट योर सिस्टम. अदरवाइज जब बोलना हो सो एट दैट टाइम यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. लेकिन अगर विजिबल सामने दिखेंगे, अब देखो 3 लोग विजिबल हैं, और क्या आपको अच्छा लग रहा है सामने? अच्छा लग रहा है, वंडरफुल. मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे मैं सबको देखना चाहती हूँ. और किस किस को ऑनलाइन सेशंस पसंद है सिर्फ, कि नहीं हमें नहीं पढ़ लिया, सिर्फ ऑनलाइन चले जाते हैं, है नहीं है, वो मजा आता है? डेल्फी, आपको क्या पसंद है? Now I can Delphi, I can't hear you clearly. Pardon, please. Drishti, what would you like? Online or offline? Offline, ma'am. Offline sessions. Wonderful. So जिसको ऑफलाइन सेशंस पसंद है, कंसिडर इट एज एन ऑफलाइन सेशन. हम आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं. देयर इज नो हिंड्रेंस ऑफ दिस डिजिटल एरा, क्योंकि जहां आप काम करने वाले हो, हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू वर्क इन कॉर्पोरेट्स? Your goal is to enter a good organization and to get into a job
और कितने लोगों को अपना बिजनेस करना है? हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हम बस अपना बिजनेस करने वाले। हार्दिक, you would like to do your own startup? Yes, ma'am. Okay. Which kind of startup you are thinking about? Yes, ma'am. Currently, I'm working with a startup named BFAST Services. Okay. Great. Okay, it's a Jaipur-oriented startup, and in which we are trying to deliver the parcel up to 500 kilometer within 24 hours. It's basically our goal to achieve the certain time period delivery. And which department you would look into? Like I am interested in marketing and finance. All right. You're interested in marketing. I'm sure that you would be learning a lot of things over there. बहुत सारी चीजें Yes, हैं, ma'am. because न्यू स्टार्टअप में काफी चीजें सीखने को मिलती हैं. Yes, ma'am. ग्रेट दैट यू हैव स्टार्टेड. चाहे आप स्टार्टअप करो, चाहे आप कॉर्पोरेट्स में जाओ, चाहे आप कुछ भी लाइफ में करना चाहते हो, क्या करना पड़ेगा? क्या चीज इम्पोर्टेंट है मुझे बताओ. इन सब चीजों में डेवलपमेंट Start today. आज से स्टार्ट करना होगा. स्टार्ट टुडे. Yes, ma'am. ओके, व्हाट एल्स? क्या दिमाग में आता है? जहां भी आप जाओगे क्या दिमाग में आता है? Hard work. हार्ड वर्क. ओके, व्हाट एल्स? खुद को क्या प्रेजेंट करने का एक सब वे चीजों में तरीका. एक चीज कॉमन है. क्या चीज कॉमन है? लर्निंग. लर्निंग. दैट्स ऑन यू. चलो एक हिंट दे देती हूँ. इट्स अबाउट अदर्स, नॉट अबाउट यू. कंपटीशन. ओहो, कंपटीशन इतना दिमाग पे चढ़ा हुआ है ना, बस हर जगह पे कंपटीशन चाहिए. नहीं है कंपटीशन, छोड़ दो उसको अभी. और और क्या आता है दिमाग में? कोई भी ऐसा इंसान है, चाहे वो मार्क जकरबर्ग हो, चाहे वो कोई भी बड़ा बिजनेसमैन हो, जो ये Partnership? हाँ, Partnership. पार्टनरशिप्स लिटिल क्लोज. और चीजें, पार्टनरशिप जरूरी तो नहीं है. स्टार्टअप्स में हर कोई पार्टनरशिप करे, बेचारे डूब जाएंगे. और कॉर्पोरेट में जाके पार्टनरशिप क्या करोगे? वो तो सैलरी लोगे उनसे, कहोगे कि मैं बिजनेस में पैसा डालते, नहीं ना. व्हाट वुड यू डू? क्या करोगे? किससे डील करोगे? अच्छा, डील किससे कर रहे होगे उसमें? चाहे आप स्टार्टअप में जाओ, चाहे कोई अपना बिजनेस लो. क्लाइंट, मोर सिंपल टर्म, सिंपल सोचो. सिंपल क्लाइंट कौन होते हैं? Customer. आपके पास शॉप्स होंगी, हर कोई जाता होगा उन शॉप्स पे कुछ ना कुछ लेने के लिए. मॉल जाते हो, किसी भी शोरूम में जाते हो, वहां पे क्या कौन होता है जिनसे बात करते हो? मैं बहुत ना सिंपल कैटेगरी की बंदी हूँ. मैं आपको, लोग कहते हैं बड़ा बड़ा सोचो, मैं कहती हूँ सिंपल चीजें समझ लो. मेक these things simpler, your life will get easy. जब चीजें हमें कॉम्प्लिकेटेड समझ में आ जाती हैं तो कितनी जल्दी सॉल्व होती है ना मैथ्स की इक्वेशन. कॉमर्स बैकग्राउंड से कौन कौन है? कॉमर्स और नंबर्स. यू वुड लाइक नंबर्स. कहीं भी जाओगे वो सब चीजें यूज होंगी. तो जब आप सिंपल चीजें समझ लेते हो तो आप किसी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज को आसान कर सकते हो. We all will be dealing with people. Yes, ma'am. करेंगे या नहीं करेंगे? Yes, ma'am. लोगों से तो डील करना ही पड़ेगा ना. कोई स्टार्टअप वाला बंदा होगा, वो ये तो नहीं कह सकता कोई आज की डेट में बड़े से बड़ी टेक्नोलॉजी ले, अगर उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे. एक न्यू फैन आया, टेक्नोलॉजी आई, फैन में लाइट्स भी होनी चाहिए. अगर लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मार्केट एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप अपने घर में खरीदोगे नहीं उसको, तो क्या टेक्नोलॉजी बनाने का कोई फायदा है? बताओ. बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर भी बना के इंसान बैठ जाए और उसे ये ना पता हो कि कहाँ पे जाके किससे क्या बात करनी है, तो क्या उस टेक्नोलॉजी से पैसे आएंगे? Would they be getting money out of it?
Would they be making any profit out of it, business out of it? No. So anywhere, wherever you go, in professionally, personally, socially, friends के साथ, अभी आप लोग सिर्फ friends आसपास और लो, otherwise you will meet a lot of people. और जहाँ भी लोग होते हैं, what will come? क्या है? हाँ, आज का टॉपिक क्या है? किसी को पता है कि आप लोग Emotions. क्यों आए हो? हाँ जी, मैम इमोशंस होते हैं. इमोशंस होते हैं. वंडरफुल. तो आज का अच्छा, क्या इस सेशन से पहले आप लोगों को क्या गाइडलाइंस मिली थी, क्या इंफॉर्मेशन मिली थी? बिकॉज यू डोंट नो मी, मुझे तो जानते नहीं हो, आज तक नहीं देखा आपने मुझे. कहाँ से आ गए है? सर को शायद आप जानते भी हो, चंदा सर को जानते होगे, अनुज सर को जानते होगे, जानते हो आप लोग, Yes. हाँ है जी. ना? तो Yes. आप लोगों के लिए मैं तो बिल्कुल न्यू हूँ. ये सेशन देने कहाँ से आ गए, किस चीज पे दे रहे हैं? तो हम किस चीज पे आज बात करने वाले हैं? टॉपिक क्या है? किसी ने पढ़ा है या ऐसे आ गए हैं? Emotional आपकी quotient. शक्ल देख के मुझे लग रहा है नहीं पता, कुछ नहीं पता है. Developing EQ in students' life for success in corporate. Okay. Rahul, Santosh, Delphi, Aman, Shashank, switch on your videos. सब के सब. तो हम जो टॉपिक पे बात करने आए हैं, दैट इज अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस एट प्रोफेशनल फ्रंट. यही है हमारा टॉपिक आज का. इफ यू वुड चेक इट आउट, आपके पास जो लिंक आया होगा, यू मस्ट हैव गॉट a line about which topic you will be covering today. तो आज हम क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे, एंड इट्स अ 2 and 4 प्रोसेस. यहाँ सिर्फ मैं नहीं बोलूंगी. देखो, मैं टीचर नहीं हूँ. मैं, सर ने भी जब बोला, in schools, in colleges, most of the times there is a connection like teacher and a student, जहाँ पे most of the work will be done by a teacher, क्योंकि वो बोलते हैं और आपको सिर्फ समझना होता है. But here, because these are the topics that is separate from your normal, जो आपका routine वाले जो subjects होते हैं, these are the life skills. तो यहाँ पे सिर्फ I am not the teacher over here, I am your trainer. So as a trainer, as a trainee and a trainer, we would interact with each other. तो आप भी अपना input दोगे, because कितने लोग जिम जाते हैं यहाँ पे, या जिम का शौक है, एक्सरसाइज का शौक है? Yes, ma'am. I go to gym. ओके. तो जिम में अगर आपके पापा बहुत वेल्दी हैं, बहुत पैसा है, सबके, कोई भी आपकी फैमिली में है, तो अगर डंबल वो उठा लें तो वेट आपका डिफरेंट हो जाएगा? क्या आपकी बॉडी बन जाएगी या आपका वेट कम हो जाएगा? No, ma'am. आपके पास सर्वेंट्स हो, आप हायर कर सकते हो, क्या ऐसा हो सकता है? इवन नॉट विद अंबानीज. अगर वेट कम करना है, अगर अपनी बॉडी शिफ्ट करनी है, तो किसको मेहनत करनी पड़ेगी? खुद को करनी पड़ेगी. तो अगर सिर्फ सुनोगे तो बात नहीं बनेगी. तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा फिर? Implement. बोलना भी तो पड़ेगा. उसको जब तक आप अपनी लाइफ में करेक्ट इम्प्लीमेंट करके उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, देन देयर विल बी नो शिफ्ट इन योर लाइफ. जो पढ़ा रहे हैं वो तो अपना अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने अपनी लाइफ बना ली, वो पढ़ाएंगे, वो कर सकते हैं, उनको सब आता है. लेकिन अब जरूरत किसको है? लाइफ में किसकी चेंज आने की जरूरत है? उनकी या आपकी? बताओ. हाँ, अगर आपने, शायद आप लीड निकाल दो, मे बी दैट वुड बी द डिस्टर्बिंग पार्ट. आप लीड निकाल के बात करो, ठीक हो जाएगा. Yes. आप लोगों के. तो most essential thing that you would need to do is
implement, and how that implementation would work when you practice it. और जहां भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले ना बोलने की, अपना थॉट प्रोसेस रखने की, पीछे मत हटो, क्योंकि आजकल जब हम कंपटीशन की बात करते हैं, द मेन एस्पेक्ट ऑफ कंपटीशन इज जो अपॉर्चुनिटीज आप छोड़ देते हो वो कोई और लेके निकल जाता है। राइट। और अगर वो आपके फ्रेंड भी होंगे ना तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप इंटरव्यू में बैठे हो, आपके फ्रेंड का सिलेक्शन हो गया, आपका नहीं हुआ, वुड यू लाइक इट? नो मैम। थोड़ा सा बुरा तो लगेगा, लगेगा ना, बहुत बुरा लगेगा। Never ever leave the opportunities that are coming up your way and participate in it. First of all, start participating into it whenever you show yourself. That is what about, जब चंदा सर ने मुझसे पूछा था how about aura and all, एक नहीं मिलेगी अपॉर्चुनिटी, don't worry, more opportunities will come your way. You know that you have done your best. अब इन इमोशंस के साथ जब लोग हैं, इमोशंस हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं, तो क्या करना पड़ेगा एज अ ह्यूमन हमें? हार्ड वर्क। अरे हार्ड वर्क सिखा, बस अंदर घुस रहा। हार्ड वर्क करते कैसे हैं मुझे नहीं समझ में आता। कैसे करते हैं? बस कॉपी लेके पढ़ते रहे, हार्ड वर्क हो गया। हमने ये कौन कौन कहता है यहाँ पे हमने बहुत पढ़ाई की है, हमने बहुत पढ़ाई की है, सारा दिन बैठ के हम पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ते कितना? 2 चैप्टर भी नहीं पढ़ते। नो मैम, स्कूल टाइम्स में पढ़ाई तो की है। अच्छा, तो अभी क्या हो गया? कॉलेज में क्या हो गया? देखो स्कूल टाइम याद आ रहा है। हाँ, कॉलेज टाइम में तो कोरोना ही आ गया था, तो पढ़ाई हुई नहीं 2 साल के बाद। वंडरफुल। टीचर्स ने ऑनलाइन पढ़ाया, सब कुछ किया, आपके लिए इतना एफर्ट किया, और आप कहते हो कि पढ़ाई नहीं हुई। ये तो पढ़ाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि आपने ऑनलाइन में कैमरा ही नहीं खोला। टीचर पढ़ रहे हैं, आपने थोड़ी ना पढ़ना है। We know everything about you. सब कुछ जानते हैं कि सबका एक ही हाल है। बट सी, कल को आप ऑफिस जाओगे, यू वुड एंटर अ कॉर्पोरेट। अगर वहां पे जाके आप ये सोचो कि काम दूसरे कर लें, सैलरी आपको मिल जाएगी? बताओ। No, ma'am. Now put your trainers, teachers in your shoes. They are working. अगर वो ये सोचें कि हम कुछ नहीं बढ़ाते, हम भी बैठ के ऐसे कर देते, सैलरी ले रहे हैं, ठीक है, तो काम चल जाएगा क्या? Because I am telling you, wherever they are, you are going to be there one day. Then think about, do the same things that you want others to do it with you. क्या आपको अच्छा लगेगा? Put yourself into those shoes. सोचो और जवाब दो। अभी तक तो हंसी आ रही थी, अब क्या हो गया? बुरा लग गया कि हमारे साथ ऐसा होगा तो क्या होगा? That is what emotions are. कभी हमारे हैप्पी इमोशंस होते हैं, कभी सैड इमोशंस होते हैं, कभी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, कभी और कौन से इमोशंस हो सकते हैं? आप लोगों के और कौन से इमोशंस होते हैं? शशांक, I would like to hear from you. Thank you, Rima. I'll come for your answer. लेकिन एक बार शशांक, are you there? शशांक, are you there? मैं 3 बार यहाँ पे नाम बुलाऊंगी, और if it is required, it's a 1 hour session, that's fine. Otherwise, if required, तो मैं फिर ऑनलाइन इसमें से बाहर निकाल देती हूँ, and that person cannot enter again.
ठीक है, बिकॉज यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड एज वेल। कल को कॉर्पोरेट में जाओगे, 9 to 6 की जॉब है, कार्ड पंच इन करना पड़ता है, तब आपकी अटेंडेंस लगती है, एंट्री होती है। तो अगर आप 12 बजे पहुंचोगे तो क्या चलेगा? नो मैम। तो ये मत सोचो कि जॉब करने वाले बहुत इजी लाइफ में जी रहे हैं। दे ऑल्सो हैव टू फॉलो अ काइंड ऑफ डिसिप्लिन। यस, आप काम अच्छा करो, आप ब्रेक्स अपने हिसाब से लो, चीजें करो, आप लेवरेज ले सकते हो, या लेवरेज नहीं होती, यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंगली, बट डू नॉट मेक द assumptions लाइक उन्हें काम करने की जरूरत नहीं है। Everyone is working over here। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो अभी, तो कल को आप जॉब कर रहे होगे और आपको उस जॉब में बहुत लोगों से डील करना पड़ेगा। कल को आके मैनेजर ने आपको बोला यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, अ मैनेजर कम्स अप एंड गिव यू एन अनदर प्रोजेक्ट, व्हाट विल यू से? इतना सारा काम है, अभी और काम करूं? कैसे चलेगा? बताओ कैसे डील करोगे? अच्छा, मैं आपको, आप लोग कहते हो कि आपको सब आता है, कौन कौन ऐसे हैं जिनको लगता है पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब आता है? अभी तक लगता था। अच्छा, अगर आपको ये सिचुएशन दी जाती है हाइपोथेटिकली, अगर आपके पास एक काम चल रहा है, कोई छुट्टी पे आपका कलीग, मैनेजर कम्स अप एंड गिव यू अनदर वर्क, उन्होंने बोला ये रहा काम, आप इसको करो, और यू डू नॉट हैव द बैंडविड्थ, आप नहीं कर सकते, आपके पास बहुत काम है ऑलरेडी, हाउ वुड यू हैंडल? कोई सही गलत आंसर नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट यू टू स्पीक अप एंड थिंक अबाउट इट, थिंक एंड टेल मी। आर्यन, आप क्या करोगे ऐसे सिचुएशन? ट्राई करूंगा मैम, आई विल ट्राई, अगर हुआ तो, नहीं तो फिर मैम। क्लाइंट की डेडलाइन है, ट्राई कैसे करोगे? नहीं किया तो क्लाइंट मारेगा। कोई लाला जी की कंपनी थोड़ी है, कॉर्पोरेट है, क्या करेंगे? और मैनेजर ट्राई बोल दिया तो मैनेजर के हिसाब से आपने करना ही है। नहीं समझ आ रहा बे? कोई बात नहीं, इट्स फाइन, क्योंकि अभी आप लोग उस सिचुएशन में नहीं हो। these trainings, आपके जो टीचर्स, ट्रेनर्स, आपका कॉलेज ये एफर्ट लेते हैं because they know that you would need these type of trainings to prepare yourself to enter the world, outside world, जहां आप जाने वाले हो। ठीक है, उन्हें पता है ये बात कि आप कहाँ एंट्री करने वाले हो। आपको दिख भी नहीं रहा, आपका विजन नहीं है, दे आर अवेयर अबाउट इट। शशांक, आर यू देयर? अनम्यूट योरसेल्फ or I'll remove you from the group. Drishti, what would you do? मैं अपने किसी कलीग से बोलूँगी कि मुझे हेल्प करे, या फिर मतलब कोई और काम जो मेरे पास होगा, अगर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा तो फिर उसे मैं मतलब थोड़ी देर के लिए पॉज करके जो इम्पोर्टेंट काम है वो करूँगी। आप अपने कलीग से कहोगे कि वो काम कर दे, हेल्प कर दे। दृष्टि, दैट इज व्हाट, सिर्फ दृष्टि के लिए नहीं है, फॉर एवरीवन। फ्रेंड नहीं है जो आपका काम कर देंगे, आपके नोट्स बना देंगे। एवरीवन इज गेटिंग सैलरी ओवर देयर। क्या आप उसको पैसे दे रहे हो एक्स्ट्रा काम करने के? व्हाई वुड दे हेल्प यू आउट? अगर आपकी वहां किसी से बनी नहीं, आप न्यू हो अभी, क्या करोगे? फर्स्ट आई विल चेक दी कि कौन सा काम इम्पोर्टेंट है, लाइक जो मैं अभी कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है या फिर जो अब आया, डेडलाइन किसकी पहले है। एक सेकेंड, अच्छा, और ये भी चीज हार्दिक, मैं सबसे पूछ रही हूँ ना, वेट फॉर योर टर्न। ओके, नो वरीज, होता है, I'll come to you। दृष्टि, सोचो। मैम मैंने आगे ये पॉइंट भी कहा था।
क्या चीज? जो भी हार्दिक ने बोला, मैंने ये भी कहा था कि या फिर अगर कोई और काम होगा जैसे आगे डिले करा जा सकता है, उसी में पॉज करके जो अभी अर्जेंट देना है वो करूंगी। ओके, जो अर्जेंट चीज है उसको अभी आप करोगे। फाइन, अभी मैं सबका सुन लेती हूँ। आई विल नॉट मेक एनी कमेंट ओवर इट। लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे इसको, ठीक है? ग्रेट दिलजीत, थैंक यू। रीमा, जैसे जैसे मेरी स्क्रीन पे आप लोग दिख रहे हो, आई एम आस्किंग अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस, ठीक है? यस रीमा। मैम, जिसकी डेडलाइन पहले होगी वो काम हम पहले ट्राई करेंगे कंप्लीट करने का, देन जिसकी डेडलाइन बाद है उसको अपन होल्ड पे रख सकते हैं। ओके, थैंक यू। हार्दिक, सेम चीज? Yes, ma'am. Okay. Santosh, are you there? Shashank, you again joined? Okay. Rahul? Azhar? Yes, ma'am. What would you do? Scenario मैम सुना था? जो वर्क ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा उससे पहले कर लिया जाएगा। Okay. बाद में True. Now my question to you all is, who is going to decide this deadline? कोर्ट में मैं ये क्वेश्चन सबसे पूछ रही हूँ कि वो डेडलाइन कौन डिसाइड करेगा? मैम, मैनेजर, जिसने हमको कोई काम दिया है करने के लिए। Okay. ठीक है, तो थोड़ा सा अगर मैं ओवरव्यू बताऊं आपको, डेडलाइंस तो पहले से ही डिसाइडेड होती हैं, और अभी इसको कॉम्प्लिकेट ना करते हुए, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अगर दोनों की डेडलाइन भी सेम होती तो भी प्रॉब्लम हो जाती है आपको, करेक्ट? किसी ने ये मैं सुनना चाहती थी, अदरवाइज ऑल्सो वुड यू डिस्कस इट विद योर मैनेजर कि सर अभी मेरे पास ये काम है, अगर मैंने ये काम भी लिया तो दूसरा काम डिले हो जाएगा। The art of saying no comes up over here as well. Handling your emotions are also coming over here, क्योंकि आप कितनी आराम से इस चीज को, जिसको आपको ना कहना है, उसको आप हैंडल कर पा रहे हो। अदरवाइज क्या होगा, 2 ले लिए, तीसरा भी आ जाएगा कि ये भी कर दो, फिर क्या करोगे? फिर उसी सिचुएशन में जाओगे, करेक्ट? तो कैपेसिटी, ऑब्वियसली यू विल सी योर कैपेसिटी एंड द, कभी कभी ऐसा होता है दैट मैनेजमेंट ऑल्सो पुश पीपल बिकॉज दे नो योर कैपेसिटी ऑल्सो, यू कैन डू इट इंक्लूडिंग योर इमोशंस। यहाँ पे अगर आपने अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाई होती, यहाँ पे आपने सबमिसिव बिहेवियर दिखाया, हर किसी का यही था कि दैट यू विल एक्सेप्ट इट, दैट इज योर सबमिसिव बिहेवियर एज वेल, जहाँ पे आप ना कह ही नहीं पा रहे हो, आप समझ ही नहीं पा रहे हो, आप डिस्कस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि अभी आप उस जोन में नहीं। अभी आप लोगों को अपना सिर्फ कॉलेज का काम करना होता है, नोट्स बना लिए, सब कुछ कंप्लीशन कर दिया, डेडलाइंस दी जाती है, अकॉर्डिंगली यू विल वर्क। देयर यू नीड टू वर्क, प्रायोरिटाइज, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, उसको राइट वे में करना, और मैनेजमेंट के साथ बात भी करना। किस किस के सीनियर, कजन्स या कोई भी पेरेंट्स, दे आर वर्किंग एंड यू आर हियरिंग फ्रॉम दोज पीपल, आज इतना गंदा दिन था, आज बहुत अच्छा दिन था, आज इसके साथ ही हो गया, आज उसने वो बोल दिया, होता है ऐसा? यस मैम। किस किस के यहाँ पे, वैसे ये क्वेश्चन मैं सबसे रेज इसलिए कर रही हूँ किस किस के, क्योंकि आजकल इसका ऑपोजिट भी होता है कि फ्रेंड्स नहीं होते, फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छे खासे। Yes, ma'am. My mother is a teacher and my sister is in bank, so you must be aware about it कि वो कैसे डील करते हैं, है ना? तो अगर हम सही से समझे, आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन ऑल्सो विद यू,
अगर हम अपने इमोशंस को समझने की बात करते हैं, सी व्हाई आई एम कमिंग अगेन एंड अगेन टू दिस, बिकॉज आप कहीं भी काम करो, आप जॉब करो, आप आगे इंटरव्यूज देने जाओ, आप सोशली अपना स्टार्टअप करो, किन्हीं भी लोगों के साथ डील करो, emotions play a vital role in your development as well. जो इंसान लोगों के साथ सही से डील नहीं कर रहा और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्या उसको प्रमोशन मिल जाएगी? इफ यू हैव टू हैंडल अ टीम, वुड यू बी कंसिडर्ड फॉर अ प्रमोशन? नहीं ना। नो मैम। नो मैम। तो इसके लिए क्या चाहिए? काम भी अच्छा होना चाहिए, एंड यू नीड टू वर्क विद अदर्स आल्सो इन सच अ वे दैट पीपल वुड एक्सेप्ट यू फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड यू वुड बी एबल टू पुट योर पॉइंट्स इन सच अ वे कि आप उनकी हर चीज नहीं मान रहे हो। ऐसा भी तो जरूरी है, वरना तो कोई भी आपको ऐसा, अगर आप कलीग हो, अगर आप एक काम कर रहे हो, सीनियर होते हो, कल को मैनेजर होते हो, तो आपको भी तो फिर घुमाने वाले भी बहुत मिलेंगे। तो क्या आपको सबकी बात माननी है? बताओ, क्या हर चीज पे हाँ कर देनी है या हर चीज पे ना कर देनी है? नो मैम। तो ये सीखना पड़ेगा ना कि कहाँ पे इमोशनली इंटेलिजेंट होना है, ताकि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल्ड वे में रख के वी वुड फोकस ऑन द वर्क। अगर आपके ऐसा बहुत बार होता है, बिकॉज आई एम नाउ, आई विल टेल यू लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो। सर ने जो बताया उसके साथ साथ आई हैव 14 years of corporate experience where I have worked with Hewitt, Aon, Wipro. I was working for a Canadian bank, Canadian Imperial Bank of Commerce, handling accounts and payroll teams. Along with that, ये कॉर्पोरेट में काम करते करते ही मुझे, और मैंने आप ही की तरह शुरू किया था, पता है, आई वॉज अ फ्रेशर। मैंने कॉलेज के जस्ट आफ्टर कॉलेज आई स्टार्टेड वर्किंग, तो मेरा हाल आपसे भी बुरा था, मैं सच्ची बताऊँ तो। क्या यार, thank you for your patience. There is a power cut. I believe it's for only 4-5 minutes. Because most of the times I am putting up in Rohini, Delhi. So there is no such cuts like here, but today is one odd day that we got. No worries. Okay, back to what we were discussing. Am I audible to everyone now? Visible and audible to everyone? Is it fine? Please confirm. Yes, ma'am. Okay, thank Audible, you. ma'am. जब भी आप कॉर्पोरेट्स में काम करते हो, आपको would continue. So while working in the corporate only, I got to know that what is required over here. After working for 12 years, I started my soft skills trainings, a full-fledged soft skills trainings, where I used to work for 5 days at corporates. Sundays, I used to go to attend my trainings for the entire day, 8 hours training it was.
और मेरे घर नॉर्थ दिल्ली से साउथ दिल्ली जाना इट्स अ 2 hours ट्रेवल. यू ऑल आर फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ. दिल्ली से हो ना आप सब, तो आपको पता ही है. दिल्ली से हो, बाहर से हो? Which Yes, city Ma'am, you are from? I am from Udaipur, Rajasthan. So you are from residing there. Sultanpur, UP. Okay. Yes, ma'am. तो ट्रैवल करके जाना बहुत देर, तो मैं बता देती हूँ, तो काफी डिस्टेंस है. But what I while working in corporates is one main area of everyone. पेन एरिया. काम करना इतना मुश्किल नहीं है. अभी आप अपने नोट्स बनाते हो, कॉलेज में हो ना, आपको बोल दिया ये करना है वो करना है, आपको पता है कितना पढ़ाई करनी है, कैसे करनी है, कर लेते हो अपने हिसाब से, थोड़ा डांट के जैसे के तब हो जाता है. लेकिन वहाँ पे कोई एक लिमिट नहीं है, यही करना है, यही काम है आपका सिर्फ. और भी चीजें करनी पड़ती है, फन एक्टिविटीज भी होती हैं, गैदरिंग्स भी होती हैं, क्लाइंट विजिट्स भी होते हैं, प्रेजेंटेशंस भी होती हैं. तो क्या जगह करते रहेंगे? यस, बहुत जगह है. Once you understand how to deal with it, how to deal with people, and I would say nobody is perfect. 100% कोई भी perfect नहीं हुआ. ये मत सोचो कभी कि इमोशंस हैं तो क्यों हैं. किस किस का इमोशनल ब्रेकडाउन भी होता है. I have worked with students who have. तो क्या आप में से किसी का इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है? होता है. Yes, ma'am. होता है. अच्छा चलो, गेम खेलना पसंद है? We would play a game over here. जब मैं आपको Yes, sir. फ्रंट बोलूंगी तो आप ऐसे अपने हेड को फ्रंट में करोगे. बैक बोलूंगी तो बैक करोगे. लेफ्ट बोलूंगी लेफ्ट करोगे. सिंपल गेम. समझ आया? ओके. निशा, आर यू देयर? स्विच ऑन योर वीडियोस. राहुल, आर यू देयर? स्विच ऑन योर वीडियोस. संतोष, Nisha, Rahul, I would request you to switch on your videos, please. मुझे भी तो शक्ल देखनी है आपकी. I would like to take a second. Yes. Okay, let's play the game. Back, front, back बोला था आर्यन. Back, front. Azhar, you are not doing it. Left, right, left, back, front, right, लेफ्ट. अब मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, ठीक है? अब प्रैक्टिस हो गई. राइट, फ्रंट, बैक, फ्रंट, राइट, लेफ्ट, स्टॉप. थैंक यू. किस किस को लगा कि अच्छे से कर लिया, या किसको लगा कि यार ये क्या हो क्या रहा है? लेफ्ट, राइट, बैक, फ्रंट. हाँ जी, क्या इमोशंस आए? शेयर इट आउट. ये सोच रहे थे कर क्यों रहे हैं ये. कर क्यों रहे हैं? अच्छा, इतना लॉजिक दिमाग है. अच्छा, और क्या फीलिंग्स आई? मैंने तो प्रॉपर किया सब. तो हमारी लाइफ भी ना, और हमारा जो वर्क कल्चर रहेगा वो भी ऐसा ही रहेगा. कभी ये कर लो, कभी वो कर लो, कभी ऐसे कर लो, ये भी कर लो. आप बोलोगे मैनेजर को मैं ही दिखाई देता हूँ और कोई नहीं दिखाई देता इनको, तुम ही कर लो. तो आप भी ऐसे ही, इसीलिए समझ आया हार्दिक कर क्यों रहे हैं. तो ऐसे लाइफ में भी घूमते ही रहेंगे.
हर जगह, और हमारे इमोशंस डाइवर्ट होते रहेंगे। We are all humans. We work accordingly to our moods, emotions, feelings. ये सबके पास है, और सामने वाले के इमोशंस को भी आप कितना समझ पा रहे हो इस पे बहुत डिपेंड करता है। All right. So now can you all see my screen? Yes, ma'am. क्या आप ये फील कर सकते हो that as a human you have all these emotions in you? In one person we can have all the emotions: happy, sad, frustrated, excited, super excited, anger. Correct? So what else? एंगर इश्यूज को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने बात करने के स्टाइल को भी चेंज करना पड़ेगा। अभी जैसे आप लोग अगर बात करते हो, सबमिसिव बात करते हो, या फिर आप हर चीज़ पे हाँ कहने वाले हो, तो ये सब चीज़ें ना कहने वाले हो, गुस्सा जल्दी आ जाता है, इन सब प्रोफेशनल फ्रंट में बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये सब चीज़ें। और क्या प्ले करेगा प्रोफेशनल फ्रंट में? और कौन सी ऐसी चीज है आपको लगता है जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है? सेल्फ कंट्रोल। इमोशन से क्या बनता है? फर्स्ट, सेल्फ कंट्रोल. इफ वी वुड नॉट बी हैविंग दैट सेल्फ कंट्रोल, वुड वी बी एबल टू कंट्रोल आवर इमोशंस? कोई और तो बाहर से आके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करेगा ना, हमें ही करना पड़ेगा. So we need to learn it out. We need to practice it also. कभी कभी failures भी होंगे, हम नहीं कर पाएंगे. We need to accept as well ourselves that it's fine. We have to. Every day is a new day. अगर कुछ हो भी गया, how we can handle it? उस चीज को linger on नहीं करना है. Second thing, सबसे, और वो सेल्फ कंट्रोल कैसे आएगा? When you would be self-aware about yourself. Self-awareness is important कि आप किस चीज से ट्रिगर होते हो, आपको क्या चीज प्रॉब्लमैटिक लगती है. You need to be self-aware about yourself. किसी को वही चीज प्रॉब्लमैटिक लग सकती है, किसी को नहीं लग सकती. करेक्ट? Yes, ma'am. डिस्कस के हम कैसे कैसे, दीज आर वास्ट टॉपिक्स, हम इन सब पे डिफरेंट हम ट्रेनिंग्स होती हैं, बट यू आर गेटिंग द पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? सेल्फ कंट्रोल. सेल्फ कंट्रोल. व्हाट वुड बी द सेकंड पॉइंट? क्या डिस्कस किया हमने सेकंड पॉइंट में? अभी क्या डिस्कस किया? सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ कंट्रोल कैसे आएगा? When we would be self-aware about ourselves. Self-aware हो गए, सेल्फ कंट्रोल आ गया, लेकिन हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं आता. तो इम्पोर्टेंट है इमोशंस को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं. What would be the third thing? सेल्फ एक्सप्रेशन. सेल्फ एक्सप्रेस कैसे करोगे? सेल्फ एक्सप्रेशन इम्पोर्टेंट है. निशा, राहुल, संतोष, I can see हार्दिक ने अभी ऑफ किया. रीमा, अजहर, दृष्टि, आर्यन is there. Okay. आपने खुद को समझ लिया, बट डील आप लोगों के साथ कर रहे हो, तो क्या आपको दूसरों के इमोशन समझना जरूरी है? इमोशनल अवेयरनेस अबाउट अदर्स. Yes, ma'am. That is necessary. अगर आप सोचो इन अ प्रोफेशनल फ्रंट, कोई बहुत सैड मोड से आया अपने घर से और आप बहुत हैप्पी मोड में हो, आप अपने फ्रेंड्स को कह रहे हो या ग्रुप्स में, टीम एक्टिविटी में, चलो आज फन एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, एंड दैट पर्सन
उसके घर पे कुछ ट्रबलसम इश्यूज थे, पता भी है आपको, तो क्या वो इंसान उन एक्टिविटीज में पार्ट ले पाएंगे? बताओ। नो मैम। नहीं ले पाएंगे। लेकिन हम क्या उन्हें बिल्कुल छोड़ दें? मैनेजमेंट ने बोला 100% अटेंडेंस इज नेसेसरी, एचआर ने आके बोल दिया 100% अटेंडेंस। सो यू नीड टू से ओके, जितना आपका मन करे यू कैन अटेंड इट, आप थोड़ी देर आके फिर आप चले जाइए। बैलेंस ऑफ बोथ, करेक्ट। हो सकता है वहां आने के बाद उसका मन चेंज हो जाए, दे विल फील गुड अबाउट इट। जब हम अपना सेल्फ कंट्रोल करते हैं, हम उस चीज से हटते हैं, डायरेक्शन चेंज होती है, तो हमारा मूड भी चेंज हो जाता है ना। सो यू माइट हेल्प दैट पर्सन ऑल्सो। तो emotional awareness about others is important. How you would do all these things? जब आप खुद लॉजिकल होगे थोड़े से, इमोशनल रीजनिंग इज इम्पोर्टेंट। आप ऐसे नहीं कह सकते मेरा मन है तो तुम ये काम करो। हो सकता है आप किसी टाइम पे आपको 4 काम इकट्ठे करने पड़े, बट देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। क्लाइंट का ऑर्डर है, क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट्स आई हैं। Every business would work with their clients only. You will handle it or not? There is a reason behind it. So emotional reasoning is important in every state. Okay, ये सब कर लिया, उसके बाद आपके पास काम भी आ गया, लोगों को भी समझ लिया। अगर आपको और वहां पे कोई आपको ये नहीं बताएगा इतने घंटे की क्लास है, इतने घंटे आपको इसमें देना है, आपको दे दिया, आपके पास 8-9 घंटे हैं काम के, आप कैसे भी करो, और आपको मैनेज करना ही नहीं आता खुद को, सेल्फ मैनेजमेंट ही नहीं है। फ्रेंड ने बोला चाय पे चले, अच्छा चाय पे गए, आधा घंटा 1 घंटा निकाला है, खाने पे गए 2 घंटा निकाले, फोन आ गया, कोई ऐसे कोई अच्छे कॉर्पोरेट्स जो हैं उनमें ऐसा कोई हिंड्रेंस नहीं होती है या फिर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है कि कॉल्स अटेंड नहीं करते हैं। मोबाइल आपके हाथ में, आप 2 घंटे मोबाइल पे लगे, गेम खेलने लग गए, किसको मैनेज करना पड़ेगा खुद को? सेल्फ मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट। तो कौन कौन से पॉइंट्स अभी तक हमने डिस्कस किए? सेल्फ अवेयरनेस। ओके, नेक्स्ट रीजनिंग, सेल्फ। अच्छा, हाथ हटाओ, हाथ हटा के बोलो। हाँ जी, क्या कह रहे हो? रीजनिंग। ओके, Managing the things. अवेयरनेस अबाउट अदर्स। अच्छा, हमने खुद को मैनेज कर लिया, अब हमें काम तो दूसरों के साथ भी करना है। हम हेल्प भी, जैसे किसी ने कहा था कि मैं अपने फ्रेंड से हेल्प ले लूंगी, तो क्या सेल्फ मैनेजमेंट ऑफ अदर्स भी इम्पोर्टेंट है इसमें? यस मैम है। तो इन सब का अमेलगमेशन, इन सब का मिक्सचर जो है, यही हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। हम अपना तो सोच लिया, हमें अपनी अवेयरनेस हो गई, या आधा टाइम तो वो ही नहीं होती है, उसी की प्रॉब्लम है, उसके बाद हम दूसरों को नहीं समझ रहे हैं। तो ये एक आई एम गोइंग टू शेयर अ व्हील विद यू। आप इसका स्नैगेट ले सकते हो इफ यू वुड लाइक, यू कैन टेक इट। ठीक है, visible to everyone? Yes ma'am. तो जब आप इन सब चीजों पे काम करते हो, सेल्फ अवेयर होते हो, मोटिवेशन भी तभी आती है व्हेन यू गेट सेल्फ अवेयर, व्हेन यू नो आपका टाइम, आपका मैनेजमेंट ठीक हो गया, आपका काम सही हो गया, किसी ने आपको जो काम दिया था उसमें आप अच्छा कर पाए हो,
then you will feel self motivated as well. नया काम करने का आपको ज़ील आएगा. अदरवाइज क्या होगा, आप पीछे वाला काम पकड़ के बैठे हो. एंड देन आपका मैनेजर भी आपसे खुश भी होगा इफ यू वुड बी एबल टू हैंडल इट. ऐसा नहीं है ना कि पुश करना पड़ेगा आप लोगों को, करो 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 करो. कोई घर तो है नहीं, कोई कॉलेज नहीं है जहाँ पे आपको बोला जाएगा ये करो वो करो. You will be a matured human being, and I believe everyone in corporate believe if you are matured enough to have a salary, to earn a salary, you are matured enough to work as well. बिना सैलरी के तो वहां काम नहीं करोगे. अगर सैलरी उठाने के लायक हो चुके हो तो काम करने के लायक भी पूरे हो. ये नहीं कहना सही, ये कहना सही नहीं होगा कि हमें नहीं आता, हम नहीं कर सकते. ओके, वी विल हायर समवन एल्स हु कैन डू इट. अगर आपकी अपनी कंपनी होती तो क्या आप ऐसे इंसान को रखते? बता. आई अंडरस्टैंड प्रॉब्लम होती है, शुरू में आपको हेल्प भी होगी, ऐसा नहीं है सारा काम आपको दे दिया जाएगा. टोटली अंडरस्टैंड. बट वो एफर्ट, वो मेहनत, वो बंडल किसको, डंबल्स, वो प्रैक्टिस किसको करनी है, किसको करनी है? आई कांट हियर यू. मुझे आवाज सुननी बड़ी अच्छी लगती है. किसको करनी है? खुद करनी होगी. खुद को. जिसने जो पाना था, देखो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं. नाउ इट्स योर टाइम टू डू समथिंग. आप सिर्फ सीखोगे नहीं, आज से ही आप अपने इमोशंस को अपने फ्रेंड्स के साथ चेक करना शुरू करो. किस चीज पे आपको गुस्सा बहुत आता है, ठीक है? कौन सी चीज आपको ना ट्रिगर कर देती है एकदम से, और कौन सी चीज से आप ओके हो, आ भी जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. करोगे? सी, अगर आप ये चीज करोगे ना, यू विल सी अ डिफरेंट काइंड ऑफ यू विद इन यू. आई कैन राइट इट डाउन. You will see a change in yourself. You will see a better you. जहाँ पे आपको ये पता चल गया, फिर आप सोचोगे अरे ये छोटी छोटी बात पे मैं ऐसे कर देती थी या ऐसे कर देता था, ये तो बहुत ट्रिवियल इशू है, आई कैन हैंडल इट वेल, ये तो बहुत छोटा सा इशू है, क्या हो गया फिर हो गया. तो फॉर दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम शेयरिंग एन इमोशनल ट्रैकर विद यू. ठीक है, आप लोग इसका स्नैगेट ले लो. इसमें आपको क्या करना है, लेट्स सी. कब हुआ कोई इंसिडेंट आपके साथ हो, दिस इज द इमोशनल ट्रैकर. आपके साथ कौन सा इंसिडेंट, बिकॉज आई डोंट नो आपकी लाइफ में क्या है क्या नहीं है. यू आर द बेटर पर्सन टू जज योरसेल्फ. कब वो इंसिडेंट हुआ जिसने आपको ट्रिगर किया, जिससे आपके इमोशंस डिस्टर्ब हुए, प्रॉब्लमैटिक हुआ, वो क्या सिचुएशन थी जिसने आपको ट्रिगर किया, आपको कैसी फीलिंग आई उसके साथ, हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, उसके बाद आपने उस पर रिएक्ट कैसे किया था. When you change your actions towards this, you can change the game. आपके reactions कैसे थे, और फिर उसके consequences क्या हुए, अच्छे हुए बुरे हुए, ताकि next time वो situation आपके सामने आए, so you will handle it with full grace, with full responsibility, and you know that this is the situation that you are well versed with. इस सिचुएशन में आपके इमोशंस को कोई हिला नहीं सकता. किसी ने आके कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ भी कह दिया, आपको उसका फर्क नहीं पड़ेगा.
ले लिया सबने स्नैपशॉट? Should I stop sharing? Yes, ma'am. Thank you. And I hope that this is going to help you out, because in this way, when you evaluate it after 1 month, एक महीने बाद ना इसको रोज लिखना शुरू करो. पता नहीं दिन में कितने 10 बार इमोशंस डिस्टर्ब होते होंगे. होते हैं? जो लोग इमोशनल हैं, कुछ लोग बहुत दिल से सोचते हैं, तो उनके इमोशंस ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं. कुछ लोग लॉजिकल सोचते हैं, दिमाग से सोचते हैं, तो थोड़े कम डिस्टर्ब होते हैं. Write it down for 1 month and see a change within yourself. कि आपको क्या लगा. फिर आप अपने टीचर्स के साथ, चंदा सर के साथ, अनुज सर के साथ शेयर कर सकते हो, एंड देन दे वुड आल्सो लेट मी नो कि कैसा रहा. With this, I would say all the best to everyone, and I hope that you are going to handle your emotions in such a way that you will feel confident that I can handle it. I can. ये छोटी छोटी बातों में मुझे परेशान होके 2-2 दिन निकालने की जरूरत नहीं है. 4 दिन एक ही बात पे सोचते रहते हैं, जो हो गया, और उससे आगे की चीजें भी हमारी सब इम्बैलेंस्ड हो जाती हैं. When you can handle your emotions then and there, root cause समझ में आ गया, आप उस पे काम कैसे कर पा रहे हो ये समझ में आ गया, नेक्स्ट टाइम के लिए आपका चैलेंज नहीं है. You have eliminated your challenge yourself. You can work on other things. लाइफ में बहुत कुछ डेवलप करना है ना, अभी तो बहुत कुछ आपको करना है. Yes, ma'am. You all can become a better human being. I believe that every student has the capacity to flourish. It's just that they need to understand what they need to work upon. किसी को किसी चीज पे काम करने की जरूरत है, किसी को किसी चीज पे काम करने की जरूरत है. And we all are here to help you out only. जितना हमें आता है हम आपको सिर्फ उतना हेल्प कर सकते हैं. बाकी काम किसको करना है? Each one of you. Thank you so much. Thank you for attending it. और स्पेशली कैमरास भी ऑन करने के लिए. आई होप आप लोगों के लिए ये जो हमने शेयर किया, दिस वुड बी हेल्पफुल. इफ देयर इज एनी फीडबैक, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू से, आप लोग भी मुझे बता सकते हो. यू कैन गो अहेड, शेयर इट आउट. Yes, Arun. Can you share your corporate experience? You want me to share my corporate experience? ऐसा करते हैं कि आज नहीं करते वो जितना मैंने बताया, आफ्टरवर्ड्स, और वी विल शेयर. ठीक है? क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है यार. इट्स लाइक 14 years एक्सपीरियंस. अब मैं अगर यहाँ पे डिस्कस करूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा. ठीक है? थैंक यू. एनीवन एल्स? Thank you, ma'am. Thanks for your lively session. Kids have enjoyed it. I'm in handy for them during the entire period of it. They could become better person, and they will see some transformational change after having seen you and having gone through your content and your words and your experience. I wish you continue to associate with us in the future also. Many more such occasions will come when you have to, like kids have also expressed their desire to have your experiences, the corporate experiences, which you can share. The valuable inputs you can always give. That is one thing I have learned today. That is the aura enhancing. Let me see whether I could some aura in the classroom or everything. Chandra sir की voice, is it audible to everyone or to me also? कि वो break down हो रहा है थोड़ा सा. Okay, no, there is not. I give my hand and thanks to you. Is it audible? Hello. Yes, the network was Yes, going off. Now you are audible. Yes. Okay.
Thank you, ma'am. Thank you for input with our students. It will be handy for them for future. We wish you your future growth and vision in IT and the students also. Thank you very much, ma'am. Thanks a lot. Thank you so much for giving me the opportunity, and it's great to see you all today. Thank you, sir, and definitely, it's a delightful session, and I believe that more and more people would be there, and we would continue. It's good to meet you also, because with like, you must be having a good experience, and I would learn a lot of things from you also. Thank you. Have a great day, everyone. Thank you for joining. Thank you, ma'am. All right. Thank you, sir. Bye.